દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન. અંદર બહાર નિરોગી અવંત પૂર્ણત્વમ જ્યોતિ, અંદર બાર નિરોગી અબંધ પૂર્ણત્વમ જ્યોતિ. સૌમ્ય ગુણી જય સચ્ચિદાનંદ, સૌમ્ય ગુણી જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન, દાદા દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન. સ્વસમયારતિ મનમાલક, ચાર ગતિથી ઉદ્ધારક, સ્વસમયારથી મનમાલક, ચાર ગતિથી ઉદ્ધારક. પ્રતાપ ગુણી જય સચ્ચિદાનંદ, પ્રકાશ ગુણી જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન. અંબાલાલની જોઈ ફાય જુદી ભાળે દિવ્ય સ્ટાઇલ, અંબાલાલની જોઈ ફાઇલ જુદી ભાળે દિવ્ય સ્ટાઇલ. ગંભીર સ્મિત જય સચ્ચિદાનંદ, ગંભીર સ્મિત જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન. શેક્યો પાપડ ના ભાંગે, મારો અહમ તે ભાંગે, શેક્યો પાપડ ના ભાંગે, મારો હમ તે ભાંગે. અચળ વિરાટ જય સચ્ચિદાનંદ, અચળ વિરાટ જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન. 15 ક્ષેત્ર જ્ઞા પ્રમેય, કૈવળ કારુણ્યમ સ્વયમે. નામિતિ ભિન્ન જ મૂળ નામ, નામિતિ ભિન્ન જ મૂળ નામ. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન. જગત સ્વભાવે નિર્પેક્ષિત, સિદ્ધ કારુણ્યમ અપાશ્રિત, જગત સ્વભાવે નિરપેક્ષિત, સદકારુણ્યમ અપાશ્રિત. જગ કલ્યાણ કવિ હરમાન, જગ કલ્યાણ કવિ હરમાન. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન, બોલો દાદા ભગવાન, દાદા. ઇન્દ્રિયોની લગામ છોડી મનના ઘોડા પર બેઠા, ઇન્દ્રિયોની લગામ છોડી મનના ઘોડા પર બેઠા. કલ્કી અવતાર સચ્ચિદાનંદ, કલ્કી અવતાર સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન, દાદા ભગવાન,
દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાન સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાન સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિંહ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો 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 સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સત ચિત્ત આનંદ જય સતચિત્ત આનંદ જય બોલો જય શુદ્ધ ચિત્રૂપ ચિદ્રૂપ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ સ્વરૂપ સત ચિત્ત આનંદ સતચિત્ત આનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધ ચિદ્રૂપ ભગવાન એ જ પરમાત્મા એ જ શુદ્ધાત્મા એ જ સિદ્ધાત્મા એ જ સિદ્ધાત્મા પરંતુ એ સિદ્ધ ગતિના પ્રયાણે છે અત્યારે સિદ્ધ ગતિના પ્રયાણે છે અને આજે એ સિદ્ધ ગતિના પ્રયાણના આપણા પરમાનંદ સ્વરૂપ અવસ્થાઓ બધી આપણી અત્યારે આ જુઓ કવિરાજ હવે હોલ ટૂંકો પડશે हॉल क्या था और क्या हो गया ગેલેરી બનાવવી પડશે जादू है जयेंद्र कल्याणी जयेंद्र भाई कविराज के मित्र पीछे है हाँ जय सच्चिदानंद रमाबेन हाँ रमाबेन બધાને નાટકમાં આવી રીતે એન્ટ્રી કરાવે ને એટલે પોતે પણ આમાં જ એન્ટ્રી કરે છો અદ્ભુત અદ્ભુત અદ્ભુત
ताराचंद आए हैं क्या? खाली हाथ ऊंचा करो। वाह वाह। दो शब्द बोलो जोर से, आपको माइक की जरूरत नहीं है। आपको मैंने हार्दिक इच्छा की है दादाजी से। अगे दादाजी आप हमें शक्ति दें, आप हमें शक्ति दें, आप हमें आशीर्वाद दें, हम आपके औजार बन जाएं, हम आपके काम को पूरी तरह से तन मन धन से और पूरी तरह समर्पण हो जाएं। बस यही एक इच्छा है। ताराचंद जी जी आपका सिंह द्वार अलवर उत्तर भारत को, पूरा उत्तर भारत को बहुत प्रकाशित करेगा ये विज्ञान से। बहुत बहुत आपका उत्तर भारत बाकी के सर्व भारत से अलग नहीं है और वहां से सब शुरू। आप पूरे विश्व के लिए आए दादाजी, उत्तर भारत को शुरुआत कर रहे हैं। मैं सच कहता हूँ पूरे विश्व के ये सम्राट है, आप पूरी तरह से स्वीकार करो। जय सच्चिदानंद। विशालता से हमारी जो भी शुद्ध आत्म दृष्टि की विशालता है और जिसको अंतर से बुद्धि के प्रकाश में भी अपने खुद के हित के लिए जो किसी का अहित ना करे ऐसा हित के लिए भी इतनी ये प्रकाश सब जगह फैल जाती है। आ प्रकाश भारतना खूणे खूणे फैलाशे અને અહીંયાથી એ અદ્ભુત વિશ્વ સારા પ્રમાણથી સારા વિશ્વમાં ફેલાઈ જવા માટે એ બહુ સુંદર અહીંયાથી શરૂઆત થશે। કવિરાજ આ શાળાને આપણે અમે આવ્યા પહેલી નજરે જોયું ત્યારે જ રમાબેન અમે એમને આશીર્વાદ કહેલા કે આ મોડેલ થવાની છે। મોડેલ 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 એટલે ઇનામ લેવા માટેની નહીં, એ કશું ગ્રહણ કરેવી જ નથી, બધાને આપે એવી છે। બહુ સુંદર જયેન્દ્રજી, ठीक है ना? हाँ रिहर्सल है कल के लिए। तो ये बहन आई है मिनल कोठारी, हाथ ऊंचा कर, कहाँ कौन है? हाँ समझ गए, ये आपका है। परम पूज्य श्री कन्नू दादा जी, रिस्पेक्टेड दादा। ये मिनल कोठारी, मिनल बहन फर्स्ट टाइम आई है आज। तो उसका वो लिखती है, दादाजी I have come here for the first time and I am very confused, but at the same time I have experienced peace of mind over here. Dada, I have come from Bangalore and Bengaluru and will be going back soon. So please Dada, I kindly request you to bless me and guide me. तो मिनल बहन, ये हमारे दादा भगवान के सत्पुरुषों है, उसमें से किसी मिलते रहना, किसी को जाने के समय आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, प्रकाश मिल जाएगा, समझी? प्लीज कॉल मी पर्सनली एंड ग्रेस मी बाय टचिंग योर फीट, चरण स्पर्श। ऊपर आके चली जाना वापस, किसी को डिस्टर्ब बिना किए, संभाल के लो। ताराचंद जी, आपका हृदय पढ़ रहे हैं, आपका हृदय कविराज। हमारी हिंदू क्या करती है वहां?
हिंदू। दादाजी आपकी कृपा चाहिए, वो आपका काम करेगी। बस वो संस्कृत की जो है, संस्कृत में पीएचडी किया है, तू है। उसने संस्कृत के 2 सब कुछ ग्रंथ हम भी निकाल लिखे देंगे। हैं। आप उस पर कृपा लेकिन करो बस। उसके लिए समय निकाल के आप आशीर्वाद बड़ौदे में आना पड़ेगा। बड़ौदा मालूम है? कभी भी समय निकाल के आ जाओ। डॉक्टर कौन सी मेडिसिन? MBS, लेकिन जनरल। So you be doing family practice? What faculty? Heart. मेरा आशीर्वाद है, जा कर हाँ? लेकिन डॉक्टर्स लोग अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, समझी? पॉलिटिक्स में नहीं जाना है हमें, लेकिन लोगों के लिए, लोगों का काम बने, इसीलिए सेवा भाव से पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। वाया बेंगलोर जाएगी या नहीं? खाली भाव तो कर, भाव कर। अभी ये लोग लेडीज को एडमिट करते हैं, मेरा खूब आशीर्वाद जा। और ये सब आपता पुत्र है, बेंगलोर में आते हैं, उसे खूब लाभ लो। पीछे आपको जब यहाँ कोई भी प्रसंग हो, वहाँ ऑफकोर्स आप तो डॉक्टर है, डॉक्टर क्षेत्र में प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, तो समय तो कम मिलता है, फिर भी समय निकालना। टाइम इज एसेंस ऑफ आवर ओन लाइफ, टाइम इज एसेंस वेरीली ऑफ आवर ओन। हाँ, ये श्वसन क्रिया चलती है, श्वसन क्रिया वो समयबद्ध है, इसके कारण टाइम इज वेरी सेंस ऑफ आवर ओन सेल्फ। साहब ठीक है, चलो मेरा आशीर्वाद देना, आपको आशीर्वाद। अरे लेके आओ, ठहर, संभाल के उसको उतरने दो। पूज्य दादाजी, आप अवसर में आए। 40 आपको एक सिर पर कलिंगी बोलते हैं, कलिंगी पगड़ी धारण करो, क्योंकि कलयुग का नाश कर सतयुग का आना भी चाहत स्वीकार करेंगे हम। आप पढ़ो। अरे बच्ची, दोनों समर्पित हैं दादाजी के। अब आपके चरणों में नमस्कार, कहाँ गए? अच्छा, भले रहे भाई, जयपुर में आपका आशीर्वाद। जयपुर में आपका शक्ति जरूर। पूरी तरह समर्पित। ये आपका पुत्र साहब आएंगे जयपुर, उनका खास ख्याल करना, बुलाना। हाँ? जाकर आए? वाह, वाह। अच्छा, बस आ गया? नहीं, अंदर नहीं। बरोबर है? हाँ? तू आ गया? पूरी तरह दोनों आदमी समर्पित हैं दादाजी अलवर के लिए, इनकी मिसेज को। गोवर्सी जी को मेरा संदेशा भेजो। अगर सही समय आ गया तो मिलेंगे उनको। उनसे बहुत अच्छा काम होने वाला है। क्या बताया? नीचे नहीं दबावाना, मेरा वजन थी रहे। ठीक है, खाली संदेशा दो इतना। ये जादूगर नहीं है, लेकिन सबके अंदर रहने वाले ऐसे हैं। और इंजीनियर साहब है, फिर भी ऐसे इंजीनियर साहब होते हुए भी वो सबके अंदर है और खुद से बाहर नहीं होते हैं, फिर भी सबके अंदर है। और मेरा संदेशा देना, कभी मिलेंगे। मेरी इच्छा है राहुल जी, बहुत दिक्कत। 40 प्यारों को जन्म दिया यार। तो अभी आप पढ़ो। प्यारे आए हम सबको नहीं, अभी नहीं, तो खाली पढ़ लो। अब जाओ, बस जाओ, बोलने का दो।
हाँ आ ले लो। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। यत्र तत्र सर्वत्र दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। जिस दिन यह नारा गूंजेगा श्री सिमंदर स्वामी भगवान का असीम जय जयकार हो, उसी दिन पूरे विश्व में शांति छा जाएगी। आप पूरा से पूरा अपने रिश्तेदारों को अक्रम विज्ञान मासिक पत्रिका लगा दीजिए और सबको चरणों में हाजिर कर दीजिए। ये दादा के दर्शन करा दीजिए। दादा के दर्शन करने से बीज पड़ जाएगा तो उनका जीवन बदल जाएगा और मोक्ष को पा जाएंगे। ये मैं सच कहता हूँ, हृदय की आवाज है। ये दादा के दर्शन में ही बीज पड़ जाएगा। इतनी ऊंची शक्ति आपके बीच में, आप कितने भाग्यशाली है। मैं यही देखता रहता हूँ कि ये लोग जो आए हैं, 7 अरब की जनसंख्या में जो लोग आए हैं, ये सचमुच में बड़े भाग्यशाली है। परम पूजनीय श्री कनकदास जी के चरण कमलों में तपोभूमि भरतरी जी महाराज सिंह द्वार अलवर राजस्थान से आज 40 प्यारे, जो पहले कभी जो है गुरु गोविंद सिंह के जमाने में प्यारे थे, वो आज जन्म लेकर के और पूरी तरह समर्पित है अलवर से इस पावन दिवस पर आए हैं। सबके सब आए हैं। उनका कोटि कोटि प्रणाम बंदन स्वीकार करें। हे दादाजी, आपसे आपका आशीर्वाद चाहते हैं तथा हमें औजार बना करके आप अपना औजार हमको बनाए और हमें वो शक्ति भर दे जिसके हमको निमित्त बना दे, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो, सारा विश्व के जीव मोक्ष ज्ञान को पा जाए और सबको अंतराल विघ्नों का नाश हो जाए। सबको आप शरण में लो। हे दादाजी, ये हमारी निमित्त प्रार्थना है। हम सदैव आपके आभारी हैं। जाओ अनंत दर्शन सचमुच में आप लोग ये पूरी तरह से दादा में जी में समर्पित होकर के इस विश्व कल्याण के लिए काम कीजिए। दादाजी का जो काम कर लेगा वो शिरोमणि में हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लो लो बस, अच्छा बैठ जाए। बस बस, खूब आशीर्वाद ताराचंद जी। आलोक का पत्र मिला मुझे। शादी अच्छी होगी ना? हाँ, कविराज अलवर और जयपुर के बीच, अलवर से कुछ 12 किलोमीटर, 12-14 વીઘા જેવી જમીન અને એના આખું બિલ્ડિંગ છે મોટું રૂમોવાળું. એ કહે છે કે આ જગત કલ્યાણ માટે અહીંથી આલોકજી ત્યાં કવિ છે, શર્માજી છે, રામાવતાર શર્મા, તો એમનું તખલ્લુસ નામ आलोक तो वो चाहते हैं कि साहब गए जाके आए और बाकी के 3 अब तो पुत्र है अभी वहाँ से आएंगे. तो मैंने बोला आप देखो सोचो, सास आपको बताओ और आप सब सोचो, सब आप तो पुत्र सब वहाँ हमेरा नहीं है, उनका ही है, लेकिन उनके 2 IAS वाले 2 है, उनका है वो, तो उसको आलोक को दे दिया कि आप सबके कल्याण के लिए यूज़ करो और जय सच्चिदानंद संघ उसमें कुछ सहकार दे, ऐसा मेरी भावना है, ऐसा बचाता है. ठीक है ना? हमें तो टेका देना है खाली, हमें तंबू ताड़ना नहीं है. हाँ व्यापी दो. नहीं नहीं बस मेरा खूब आशीर्वाद है, संभालो. हाँ सबको दे दो, सब લો ચાલો. હવે આપણે કવિરાજ, અમારું સૂચન થયું છે અમારા પ્રત્યે કે સરીબેનને ખાસ ભાવ આ વાત કરી કે શ્રેણી નંબર 15 अनुभव प्रगट अनुभूति के ज्ञान सूत्र है, उनकी 15वीं बुक है, उसकी सीताबेन है. ठीक है ठीक. 15 श्रेणी में 3 सूत्र बताए हैं. तो वो सूत्र नंबर गुजराती मत बोलिए, 168, 169 અને 170 3 સૂત્રો સુંદર છે.
બહુ જ ટૂંકા ટચ છે, પણ એનો વિસ્તાર ઘણો જ મોટો છે. જેવી રીતે આકાશ તત્વનો વિસ્તાર છે એવું એની અંદર વિસ્તાર સમેલો છે. આપણે લઈએ એક બાય એક. શાહ સાહેબ લઈએ તો શ્રેણી 15માંથી સૂત્ર નંબર 168નું હું વાંચું છું. બહુ લાંબુ છે એટલે જરા માફ કરજો, જરાક બહુ મને વાર લાગે તો. वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है. बोलो, वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है. बहुत लंबा सूत्र है क्या? क्यों कि वर्तमानता का नाप लो, गમે ત્યાંથી માપો, પહોંચી નહીં વરો તમે. એમાં સમસ્ત ભૂતકાળ અને સમસ્ત ભવિષ્યકાળના પર્યાયો, અવસ્થાઓ બધી જ સમાયેલી છે. અને વર્તમાનતા એ બીજું કશું જ નથી, જીવન મુક્ત દશા છે. જીવાતું જીવન, રમાબેન, જીવાતું જીવન. અને એમાં આપણે જીવી જતા વર્તમાનતાએ આવા આટલા જ શરીરમાં અદ્ભુત છે દશાએ. આપણે લોકાકાશ કે અલોકાકાશ એ ભાષા શાસ્ત્રની છે. ત્યાં કોઈ આપવાની જરૂર નથી, ત્યાં જવાબ બહાર નીકળવાની જરૂર નથી. એ સારું લોકાકાશ અલોકાશના સ્વરૂપે પણ આટલા શરીરમાં જ છે, શરીરમાં જ છે. એટલા માટે એને બ્રહ્માંડ પિંડે કહ્યું, પરંતુ એ બ્રહ્માંડ એ તો લોકાકાશને કહ્યું. પણ અહીંયા અંદરનું છે એ આખું લોકાકાશ ને અલોકાકાશ બે રીતે છે. લોકમાં અને લોકની બહાર સાથે સાથે વર્તમાનતાએ કરીને આપણે જીવી શકીએ. કેવી રીતે? વર્તમાનતાએ કરીને અને એવી અદ્ભુત મુક્તતાએ કરીને જીવન જીવી જઈએ. આ બદ્ધ શરીરમાં, બદ્ધ શરીરમાં, બદ્ધ એટલે આપણે આપણાથી બંધાયેલા હતા. તે કોઈ બાંધવા નતું આવ્યું. અને એવા બંધાયેલા છૂટવા માટે આપણી સામે આવ્યા છે પાછા. હવે એમને છૂટે નહીં ત્યાં સુધી કે એમને કેમ ચેન પડે? એટલે अच्छा ये बात है, रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो सूत्र तो बड़ा अच्छा है, सूत्र तो बड़ा अच्छा है. वर्तमानता से जीवन मुक्त की, वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है. तो हमारा जो शरीर है वो कर्मबद्ध है. जो हमारे किए हुए कर्म थे, वो किए हुए कर्म के कारण जो कारण स्वरूप से बद्धता थी, वो आज अगर क्रिया स्वरूप से बद्धता की निकाल न हो जाती पूरी तरह से, शास्त्र और शास्त्राधिक भाषा तो बहुत अलग है. हम खुद बंधनों से बंधा गए थे और जो हम खुद से हुए थे वो हम खुद अलग हो गए आज. क्यों? कि खुदा को जान लिया है पूरा, खुद को जान लिया है और इसलिए खुदापन है. वो खुदापन में वो हमारी शरीर और भगवान के बीच की हमारी स्थिति है. उस स्थिति से सारा ब्रह्मांड का, आकाश का व्याप वहाँ है, वहाँ हम पहुँच सकते हैं पूरा पूरा ये मानव देह में. और ऐसा मानव देह में सारा ब्रह्मांड का, अवकाश का व्याप
और सभी तत्वों का, उनके साथ साथ रहते रहते वर्तमानता से हमें अलोकाकाश की पूरी समझ आ जाती है। और ऐसी समझ आते ही हम ये विश्व के बाहर और विश्व के अंदर दोनों ढंग से रह सकते हैं। और इसीलिए विश्व के बाहर का रहने वाला मेरा समझ वाला भाग, वो विश्व की सभी रचनाओं का, स्थितियों का और सभी मानव समाज, विश्व मानव समाज, उसका अच्छी ढंग से सभी को जो चाहे अपने खुद के सभी के जीवन में वो जो भी समस्या हो वो सुलझा सकता है। कोई भी समस्या हो, क्यों सुलझाने वाला रहा नहीं, आप सुलझन हो जाती है। आप सुलझाने वाला रहता है वो तो मर्यादा में आ जाता है, और सुलझाने वाला नहीं रहा तो अमर्याद हो गया। रमा बहन, बड़ा मजे की बात है। उसमें चाहो इतना हम एक दूसरे से बात करके हम समझ प्रकट कर सकते हैं, खुली कर सकते हैं अपने अंदर की। जिसको बुद्धि का प्रकाश है वो बुद्धि का प्रकाश के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं, और जिनको ज्ञान का प्रकाश है उनकी प्रज्ञा शक्ति इतनी प्रज्वलित होती जाती है, और इससे हमारा ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश अच्छी ढंग से खुला होता जाता है, अनावृत होता जाता है। ऐसी वर्तमानता है। हम है, बोलो मैं हूं। और इसीलिए ही जो मैं नहीं था उसमें मैंने मैं माना, वो मेरे सामने आया है। उनको, वो शरीर को मैं अच्छी ढंग से, पूरी तरह से, जैसा है वैसा देख लेता हूं, जान लेता हूं, और मेरे सच्चिदानंद स्वरूप में रह सकता हूं। अभी सूत्र नंबर 100, બોલો સાહેબ, કવિરાજ બોલો। એક લોકાકાશ બરાબર, અલોકાકાશ આની અંદર કેવી રીતે આવ્યું એ ખબર ન પડી। ये समझ का भाग है। समझ का भाग सब जगह चला जाता है। यही सारा एक थोड़ा छोटा सा शरीर के अंदर अलोकाकाश महीना क्या कि हमारी वर्तमानता में भविष्य की अवस्थाएं हमें उसका अनुसार आ जाता है। कीर्तनकर भगवंतों को केवल ज्ञान के प्रकाश में वो समझ से अंतिम प्रकाश है, अंतिम दशा है। उसमें वो भविष्य में जाते नहीं हैं, और भविष्य में जाते सबका प्रश्नों का जवाब नहीं दे देते हैं, लेकिन भविष्य की पर्याय उनके वर्तमान के केवल ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है। प्रतिबिंबित तो आसानी से बिना प्रतिबिंबित होए क्या देखें हम? जो प्रतिबिंबित हो रहता है आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब और वो सारा प्रतिबिंब का बिंब जो पड़ा उसमें वेदांत में वो बहुत अच्छी उपमा है, बहुत अच्छी उपमा है, बहुत अच्छी उपमा है। उसमें वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम देखने वाले कैसे हैं? अमर्याद है, इसी कारण है। और अमर्यादता के परिप्रेक्ष्य में ये अलोक और लोक आकाश दोनों आ जाते हैं। और किसी को पूछना है कोई इसके इस सूत्र के बारे में? आपको शरीर बहन, रमा बहन को कुछ नहीं। यहाँ से वडील लोग कौन? सुरेश भाई पूछते हैं, आप बोलते हो? रमा बहन, जरूर 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 जरूर, बहुत आनंद आएगा।
બોલો. કે સમુદ્રને જાણવું હોય તો નહીં. સમુદ્રને ન જાણી શકે, પણ એક બિંદુને જાણે તો સમુદ્ર સમજી શકે. ठीक है, જેટલું- ये वर्तमानता वो ही बिंदु है और समुद्र है, સમુદ્ર હે, હા. दोनों साथ साथ में है. અને और बिंदु समुद्र सा સા- सारा फैल जाता है. અને क्या? જેટલું- लेकिन समुद्र जो है वो बिंदु को कैसा पहचानेगा? बिंदु की જેટલું- कीमत है, સ- वही वर्तमानता है. જેટલું સ્વચ્છ અરીસો હશે એટલું સ્વચ્છ બિંબ પડે. हिंदी भाषा. जितना जितना स्वच्छ, जितना चमकता हुआ आईना होगा उतना बिंब स्वच्छ पड़ेगा. वो श्रीमद राजचंद्र जी ने यही जताया है वहाँ और बताया वहाँ अच्छी ढंग से कि हमारी चित्त की वृत्तियां इतनी निर्मल हो जावे. क्या बताया? कौन सी चित्त? तो कि शुद्ध चित्त, शुद्ध आत्मा, ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश वाली हमारी चित्त की वृत्तियां जो आज है उसमें से जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस का भाग है वो एक्सपोर्ट हो जाता है और खाली निर्मल चित्त वृत्तियां रह जाती है साहब. एक्सपोर्टेबल सरप्लस को क्या बोलते हैं शास्त्र भाषा में? निर्जरात होने वाला भाग, अकाम निर्जरा वाला भाग. क्या बताया? उसको एक्सपोर्ट करना ही पड़ता, वो एग्जिट हो ही जाती है उनकी, लेकिन हम उसको एग्जिट होने नहीं देते उन सभी को. ये तकलीफ हो गई है. इसीलिए बताया चित्त की वृत्तियां इतनी निर्मल हो जावे कि उसमें दिखावापन हमेरा है वो इतना स्वच्छ है तो आपो आप अपने देखने के स्वभाव से सब दिखाई पड़ता है. अच्छी श्रीमद जी ने बताया है उनकी अनुभव वाणी में, कविराज बहुत अच्छा बताया है. उन्होंने उपमा दी है वहाँ, सिमिली दी है कि हमारी चित्त की वृत्तियाँ ऐसी निर्मल हो के इतनी स्थिर हो जावे कि अगर हम बैठे हैं कायोत्सर्ग में, पद्मासन में और ध्यान में, तो कोई पीछे आया तो क्या चीज है तो उसको चढ़ लगती है, तो बोलते हैं कर कोई यहाँ नजदीक दिखाई नहीं पड़ता, ये अच्छा है चीज, तो वो चढ़ से अपनी चढ़ निकालता है, फिर भी वहाँ कुछ असर नहीं होती. ऐसा सिमिली दी है उसमें से. अगर हिरण आवे, हिरण अपने सिंह से करे तो भी कुछ नहीं. ऐसी सिमिली दी है श्रीमद जी ने, उनकी ये भावना थी. है? लेकिन वो उत्कृष्ट क्रम मार्गे प्रतीक थे, क्रम मार्गे उत्कृष्ट प्रतीक थे अपने समय में, करीब 125 साल के आगे. और उनकी ही ऐसी स्वच्छ चित्त वृत्ति की भावना से उनसे वचन निकल गए हैं कि जो हमें लगता था कि हमारे ये पुद्गल शरीर के कारण अंदर जो प्रकाश हुआ है वो कई लोगों को लाभ दे जाएगा और ऐसे लाभ प्राप्त करने वाले 2-4 लाख हो जाएंगे, ऐसी उनकी भावना थी. लेकिन जब आयुष्य और आयु कर्म का निकट में अंत आया तो उसको पूछे गए, उस समय में आगे पूछा गया था तो उसके जवाब में बताया उन्होंने कि ये हमारी भावना व्यक्त होने ही वाली है और अवश्य होगी. ये दादा भगवान का प्रागट्य, ये हमें दिंग धनी अपने किसी के सर पर बैठने वाले नहीं हो. हाँ? कृष्ण भगवान ने किसको नाथा था? काली. हैं? उनको क्या बोलते हैं साहब? हाँ, कालियानाथ. ऐसा हमारे सर पर बैठ गए हैं वहाँ दादा. अभी उसको मुंह ऊंचा करने ही नहीं देते ना, वो तो उसमें जोर है थोड़ा करने के रह जाते, नहीं वो करने देते. हैं? हैं? अरे ऐसा क्या बल तो है, इतने लोग हैं तो. कैसे धनी बताया, समझ में नहीं आया. कैसे?
धनी धनी बताया ना। ये शास्त्र में है, वो शास्त्र की भाषा है थोड़ी। अच्छा दिंग धणी वो स्तवन है, एक स्तवन है आनंद गंजी महाराज का। और चंद्रकांत भाई अपने थे, तो चंद्रकांत भाई इतनी खुमारी थी उनकी, कौन हमारे ईश्वर अच्छी खुमारी थी उनकी। तो रमाबेन ठीक है। बिंदु महीना केंद्र क्या बताया रमाबेन? उनको बोलना दो, बोलने का दो, जोर से बोलो। बिंदु महीना केंद्र, बिंदु में केंद्र, केंद्र केंद्र, हाँ, सेंटर, सेंटर, यस। सेंटर जगह नहीं रोकता कभी भी, आप समझे? हाँ बिल्कुल। सेंटर इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। क्या बताया? सूक्ष्म है। और इसी कारण पुद्गल का वर्तुल सभी जगह से उस सेंटर के कारण होता है। इसीलिए हाँ, और सबसे अच्छा वर्तुल तब होता है जब सभी अंक की सम चतुस्रता अच्छी ढंग से हो जाती है, तब पूरा वर्तुल अच्छा हो जाता है। सच्ची बात। इसीलिए तो भगवान को नमस्कार करते हैं, सिमंदर स्वामी परमात्मा को। ऐसा वर्तुल दिखने न मिले आपको, इसीलिए तो लोक और अलोक सभी की समस्याएं आसान से सुलझन हो जाती है, आसान से। वो देशना है, बोली गई वाणी नहीं है, वो निकली हुई दिव्य वाणी है, जिससे अगर वो बाहर से भी है विश्व के बाहर, तो विश्व और विश्व के संलग्न ऐसी अपनी सारी सेलेस्टियल वर्ल्ड, तारामंड, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारा वगैरह, नवग्रह वगैरह, वो सारी और 15 क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र की सभी उनके पास है, और जो भी प्रश्न करे उससे निकल जाता है। और हमें विश्व में रहते रहते मनुष्य शरीर और जीवन के बारे में कई कई प्रश्न उठते लगते हैं। आज के विज्ञानी लोग को प्रश्न है ही कितने, और ये कहाँ गुमराह हो गए हैं टाइम समय में। स्पेस उसको उनकी भाषा की स्पेस है, वो दरअसल तत्व भाषा की स्पेस नहीं है, टाइम और स्पेस। और पीछे बोलते हैं मोशन गति, तो उनकी भाषा की मोशन गति है, वो तत्व भाषा की, भगवान की भाषा की नहीं है। वो चाहते हैं कि गति है तो स्थिति होनी जरूर है, तो बोलते हैं तो इथरियल फ्लो, वो सब अपने आसपास में इथरियल फ्लो है। इसीलिए हमारी चित्त कहाँ भी चली जाती है, यहाँ से अमेरिका कहाँ भी चली जाती है, इथरियल फ्लो, उसको ऐसा बताते हैं वो लोग, क्योंकि इनकी भाषा है ना, वो तो भगवान की भाषा की वो अधर्म अस्तिकाय नहीं है, अधर्म अस्तिकाय, अर्थात अधर्म रूपी तत्व, एक अखंड सारा ब्रह्मांड का, वो तत्व के कारण ही स्थिति हो सकती है। हम खुद अपनेपन से स्थिति नहीं कर पाते कभी भी, हमारे विचार हो, बुद्धि की कोई भी व्यवस्था हो अंतर की, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाता। और जब ये तत्व दृष्टि में सारा तत्व रहस्य सभी तत्वों का जैसा जैसा खुला होता जाता है, वैसे वैसे हमें हमारी समझ में आ जाता है। आज ये पंचम काल है, कली काल है, कली युग है, इसके कारण वो समझ तक ही जा सकते हैं, और समझ केवल ज्ञान की जनेता है, केवल ज्ञान की जनेता है समझ। इसीलिए भगवान ने बताया हमारा ज्ञान जो विज्ञान स्वरूप से है, वो क्रिया से है ही नहीं, शरीर साथ होते हुए भी शरीर क्रिया वाला है, शरीर क्रिया वाला है, शरीर की क्रिया वाला शरीर में शरीर की सभी क्रियाओं अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से या बाह्यकरण से, बाह्यकरण जो 5 प्रकार का हार्डवेयर है, ये 5 इंद्रियों वाला, और उसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियों का सॉफ्टवेयर है, तो दोनों साथ साथ में साफ क्या करें,
पढ़े तो नहीं हम कंप्यूटर। आया कहां से कंप्यूटर सुरेश? कौन कहां से आया, कहां से टपका? आईटी नेट। हाँ, तो एक केंद्रवर्ती अपनी वर्तमानता की अवस्था है जिसे आप बुद्ध बोलते हैं। वो अवस्था इतनी अद्भुत है, केंद्रवर्ती। केंद्र और वर्तुल बहुत अच्छा संबंध है, बड़ा अच्छा प्यारा संबंध है। हमारे 63 शला का पुरुषों जो है वो सभी को केंद्र और वर्तुल उसकी सही समझती, सबको बहुत अच्छी। इसीलिए तो श्रेष्ठ पुरुषों कहा गए। हम मानते हैं कि प्रति नारायण प्रति वासुदेव ऐसे नेगेटिव है, ऐसा नहीं बात नहीं है। उनका नेगेटिवपन इतना है कि वो एक निमित्त बन गए हैं खाली, लेकिन उच्च प्रकार के निमित्त बन गए हैं तो नेगेटिव प्रकार के एक्सट्रीम स्टेज पर ले जाते हैं, इसीलिए पूरा पॉजिटिवपन उसको प्राप्त कर लेता है। दादा भगवान ने बताया है ना, ये किनारे पर ज्ञान है, सामने किनारे पर ज्ञान है, ये बात है। तो किनारा पर अगर किसकी स्थिति है को किनारा उसको प्राप्त हो जावे, नहीं आप समझे? बड़ी अच्छी बात है किनारा प्राप्त करना। कविराज ने पद में भी लगा दिया है छबिया, बड़ी अच्छा पद है। 2 लाइन बोल दो ना खाली वो। હવે છબ છબિયા નથી તરવાના, હવે છબ છબિયા નથી કરવાના, હવે છબ છબિયા નથી તરવાના, હવે છબ છબિયા નથી કરવાના, નથી તરફડિયા કંઈ કરવાના, નથી તરફડિયા કઈ કરવાના, નથી તરફડિયા કંઈ કરવાના, નથી તરફડિયા કઈ કરવાના, સમયને સરવા દો, સમયને સરવા દો, ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દો, ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દો, સમયને સરવા દો, સમયને સરવા દો, ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દો, ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દો। વર્તમાન ये केंद्र वाले वर्तुल वाले कभी भी काल को पकड़ेंगे नहीं, वो काल को शरण ऐसी बात है। इस श्वसन क्रिया से जो काल सरक रहा है वो आसानी से उसको पकड़ेंगे नहीं कोई, और इसीलिए सरता जाएगा। बड़ा अच्छा निकली बात है दादाजी। आज थोड़ी देर में अभी बच्चे लोग यही पद पे अपने को नृत्य करके बताएंगे, छप छपिया वाला। अभी यही छप छपिया वाला पद है कविराज का। हमारे स्कूल के बालकों सभी अच्छी ढंग से बताएंगे जयेंद्र की 6 बजे 6 बजे से। हाँ। तो अभी दूसरा 2 सूत्र ले लेते हैं आगे का। 169 कितना, क्या बोला जाता है हिंदी में? 69 तो आता नहीं है। आता मराठी शिकायला पाहिजे, हाँ? मराठी शिकायला पाहिजे। अच्छा ठीक है, हम सूत्र पढ़ते हैं। हम सूत्र पढ़ते हैं। श्रद्धा, बोलो श्रद्धा अपना शुद्धात्मा का, अपना शुद्धात्मा का दर्शन गुण है, दर्शन गुण है। ये सूत्र है। श्रद्धा शब्द व्यवहार में हम सभी के लिए वो पूरी तरह से ज्ञात है, लेकिन वो व्यवहार से है, व्यवहार से।
और श्रद्धा का तो बहुत महत्व दिया है, श्रद्धा को तो बहुत महत्व दिया है। और इसी कारण धर्म और धर्म की आराधना कहीं कहीं प्रकार से हो रही है, वो उसमें श्रद्धा शब्द आता है, श्रद्धा शब्द आता है। तो व्यवहार में वो श्रद्धा रखवावे ऐसा वाला आता है, और जो बाकी है वो श्रद्धा रखने वाले हैं। दोनों तरफ से है वहां। लेकिन श्रद्धा ऐसी चीज नहीं है कि वो मनुष्य से ऑपरेट की जाए। श्रद्धा तो स्वतंत्र चीज है, स्वतंत्र। इसीलिए उसको व्यवहार में विश्वास शब्द से बताया, विश्वास। अगर मनुष्य के समाज में एक दूसरे के अपने मानवता के संबंधों के नाते हम सभी व्यवहार में है, सभी के साथ जो भी अपने साथ आते हैं, वो सभी व्यवहारों में अगर हम एक दूसरे के साथ हमारा विश्वास दूसरों के पास ऐसा निकल जावे, तो अपना मनुष्यपन में उसना बहुत कम, वेरी पुअर मनुष्यपन है। बहुत समझना चाहिए। विश्वास शब्द इसीलिए श्रद्धा से संलग्न किया। विश्वास शब्द विश्वास को बहुत पवित्रता देगी इस व्यवहार में। विश्वास, किसी का विश्वास संपादन करना। अगर तो हम किसी के सही ढंग से विश्वासु है कि जो आसानी से हमारे में विश्वास रख सकता है, ऐसा हमें होना, ये दोनों बहुत पवित्र चीज कही। लेकिन ये क्या संसार की बात हो गई। संसार में तो भगवान हाजिर है, इसीलिए संसार में श्रद्धा का परछाई वाला तो विश्वास शब्द है, परछाई वाला। जो मूल वस्तु है और परछाई है, तो दोनों की वैल्यू है। परछाई मूल वस्तु नहीं है, लेकिन मूल वस्तु की परछाई है, वो पुद्गल तत्व की ही बनी गई हुई है। वो विश्रस परिणाम स्वरूप के ऐसे तत्व स्वरूप है, वो पुद्गल के है। पुद्गल सी परछाई जो बोलते हैं, कौन मानेगा आज का विज्ञानी। परछाई पौद्गलिक है, लेकिन उनकी पौद्गलिकता कौन समझा पाएगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर ये समझ गए तो हमारी पुद्गल गुणों युक्त प्राकृतिक गुणों वाली शरीर है, जो वो शरीर में उसमें, और विश्वास, क्योंकि भगवान हाजिर है, तो भगवान हाजिर है, तो भगवान की परछाई है विश्वास की, तो अंतर की जीवन की है वो। तो इसीलिए भगवान और भगवान खुद है, और शरीर में, शरीर की बिना मालिकीपन से, शरीर की पूरी ममता रहितता से, मन वाणी काया की जब वैसी स्थिति हमें प्राप्त कर ली है, केंद्रवर्ती में, उसी को बिंदु बोलते हैं। क्योंकि पूरा सागर महासागर ही है। वो महासागर तो देख सकते हैं हम, तो उसमें भी सुनामी उठती है और उसके अंदर भी उठती है क्या नहीं, सभी जगह सभी। इसीलिए ये श्रद्धा शब्द मूल दरअसल भगवान पर जाता है, और व्यवहार में, संसार में परछाई के स्वरूप में श्रद्धा भी शब्द है और विश्वास भी शब्द है। लेकिन संसार में जो श्रद्धा बोलते हैं वो असल श्रद्धा नहीं है। इसलिए ये बताया, श्रद्धा अपना शुद्ध आत्मा का दर्शन गुण है। दृष्टि है तो सबको सब दिखाई पड़ते हैं, दृष्टि में जो जो आवे वो सभी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये पौद्गलिक दृष्टि है। कौन सी? पौद्गलिक, अर्थात लाइव मटीरियलिस्टिक। क्या बताया? हाँ, सजीव मटीरियलिस्टिक, उसको दृष्टि बोलते हैं। उसमें इतनी ताकत है, शक्ति है। देखो वो दृष्टि उसका ज्वलन नहीं होता। हम फायर को देखें तो फायर को देखते दृष्टि नहीं जल जाती। फायर फायर है और हम देखने वाले हैं चर्म चक्षु से,
तो ऐसे हमारी शुद्धात्मा चक्षु से, शुद्धात्मा की देखने वाली और जानने वाली प्रकाशमय दृष्टि से और ज्ञान से, और दृष्टि से जो है वो दृष्टि का भी गुण है, ज्ञान है वो ज्ञान के भी गुण है। दृष्टि के गुण मूल, ज्ञान के गुण खुले होने के जनक है, जनक है और जनेता है, जो भी समझो। हाँ, दर्शन को केवल ज्ञान की जनेता बताई। हाँ, दर्शन नहीं तो केवल ज्ञान नहीं। दर्शन महीना क्या कि हमको देखने वाले नहीं, लेकिन हमारा श्रद्धा स्वरूप गुण है, इसीलिए हमारे दिखावे पने में सब आ जाता है। शरीर का अंदर का सारा अंतःकरण और शरीर का, और शरीर जो व्यवहार वाला भी सबके साथ व्यवहार में है, वो सभी सर्वप्रथम हमारी इस श्रद्धा गुण से, दर्शन से, सभी के अंदर ऐसा श्रद्धा गुण दर्शन गुण है, लेकिन सुषुप्त है। लेकिन उसके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ जाती है तो उसके साथ साथ ही बार व्यवहार वाला भाग है, विश्वास वाला भाग, श्रद्धा वाला भाग आ ही जाता है। इसीलिए दादा भगवान ने समझाया, बताया कि श्रद्धा किसी से किसके पर रखने वाली चीज नहीं है। हम किसी के पर श्रद्धा रखे, गुरु के पर, तो ही श्रद्धा आवे, इसी बात नहीं है। और हमें श्रद्धा में रखने के लिए गुरु निमित्त है, ऐसी भी नहीं है। वो ऐसी क्रिया वाला नहीं है, वो क्रिया नहीं है, वो तो अपनी स्वभाव से, स्वभाव की क्रिया से, व्यवहार में सारी क्रिया वाले सभी व्यवहार में मानव स्वरूप के वो अक्रिय स्वरूप से है, सक्रिय अक्रिय। हाँ, इसीलिए इसको बताया कि दर्शन गुण है वो। सक्रिय मैंने दर्शन से दिखने वाले शुद्धात्मा है, अनंत दर्शन शक्ति वाले ऐसे शुद्धात्मा है, इस टाइप में बताया। तो श्रद्धा अपना शुद्धात्मा का दर्शन गुण है। श्रद्धा पर एक दो लाइन बोल सकते हैं आप सब? શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે हिंदी શાસ્ત્રને બતાવે કે શ્રદ્ધા પરમ દુલ્હા, એટલે કે શ્રદ્ધા બેસવી મહા દુર્લભ છે। આજ ઓચિંતા કોઈ તમે રસ્તાના માણસને એમ કહો તમે ભગવાન છો, નહીં માને, એ ધ્રુજી જશે। મને ભગવાન કહે છે એટલે શ્રદ્ધા પરમ મહા મુશ્કેલ છે। આપણી બે લાઈન છે બીજે કે શ્રદ્ધા ફળે છે પ્રેમ ને વિશ્વાસમાં, શ્રદ્ધા ફળે છે પ્રેમ ને વિશ્વાસમાં, પરમાત્મા આવીને બેસિયા જો શ્વાસમાં, પરમાત્મા આવીને બેસ્યા જો શ્વાસમાં। શ્રદ્ધા મહા દુર્લભ છે। महादुर्लभ છે। और तीसरा सूत्र लेते हैं। सूत्र 170 શું કે હિન્દીમાં 170 मराठी શું કે मराठी सीखनी पड़ी। क्या बोले आप? 170 बोलते हैं कहीं बोले नहीं, सीखवानी मराठी का क्या है, लिए बताया आपने? ऑर्डर આવ્યો છે શીખવાનું છે। अच्छा, ये सूत्र पढ़ते हैं हम। उपयोग बोलो। उपयोग शुद्ध आत्मा की शुद्ध आत्मा की लाक्षणिकता है, लाक्षणिकता है, शरीर की नहीं। शरीर की नहीं। उपयोग शुद्ध आत्मा की लाक्षणिकता है, शरीर की नहीं। उपयोग शब्द बहुत महत्व का है, और यही बात में यहाँ भी ये उपयोग शब्द जो मूल शब्द है, मूल के ऊपर, मूल वस्तु के ऊपर लागू है।
वो जो मूल नहीं है, अवस्तु है, वहाँ भी शरीर के जीवन में और शरीर के सभी व्यवहारों में वो उसका वापर होता ही है। हम वो बुद्धि से वो वापर कर लेते हैं, लेकिन जो बुद्धि से वापर कर लेते हैं उसको उपयोग नहीं बोलते। हाँ, तो उपयोग क्या चीज है? तो उपयोग तो सारे जीवन में सभी व्यवस्थाओं में बच्चे से लेके बड़े सभी लोग समझ लेते हैं कि चीज उठाई ली, उसको उपयोग कर लिया, लेकिन उपयोग ऐसी क्रिया वाली चीज नहीं है, क्रिया वाली चीज नहीं है। वो स्वभाव से क्रियाशील पर स्वभाव में अक्रिय है। फिर भी वो उपयोग शक्ति, जैसे ही व्यवहार में उपयोग को वापर बोलते हैं, यूज बोलते हैं, वैसी ये शुद्धात्मा की ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश जो है, वो ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश खुद मूल स्वरूप के है, शुद्धात्मा के है। वो अपने आप प्रकाश का गुण जो है, वो गुण उनका परिवर्तन गुण का आता है, वो परिवर्तनता है उनकी, उसको उपयोगिता बोलते हैं। उपयोग वो प्रकाश काम में आता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन शुद्धात्मा मूल वस्तु है, उसमें काम में आता बोलनी कहाँ है? शरीर है इसलिए भाषा बोलते हैं। तो भगवान और शरीर की बहुत महत्व है, और इसीलिए मानव और मनुष्य शरीर इतना महत्व का है कविराज, कि जितनी हम भगवान की महत्वता समझते हैं, इतनी उसके सर की ही शरीर की महत्ता है, महत्ता। और इसी कारण वो दोनों के साथ साथ होते होते उन्हें उपयोग शब्द बहुत काम आता है। उपयोग दादा भगवान ने ऐसा बताया कि जैसी पतंगा है और पतंगा की डोरी है, तो डोरी और शरीर रूपी पतंगा, उसमें वो डोरी शुद्धात्मा का दर्शन गुण वाली है, और उसके लिए वो सारा ज्ञान प्रकाश खुला होता जाता है। ये उपयोग शब्द बहुत महत्व का शब्द है, बहुत महत्व का। सामान्य तौर से बहुत वापर लेते हैं, लेकिन बिना वपराया हुआ, स्वभाव से काम करता हुआ, उसको उपयोग बोलते हैं। हमारी देखने की स्वभाव, और इसीलिए बोलता है ये शरीर रूपी पतंगा, अगर जिसके पास दृष्टि है, वो दृष्टि से शुद्ध आत्मा की दर्शन गुण शक्ति से वो पतंगा अच्छी ढंग से, उसको कंट्रोल नहीं बोलते, संयमित कर रखते हैं। संयमित, कंट्रोल शब्द संयमित का इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन करें साहब? संयम का और संयमित करना कंट्रोल, कंट्रोल शब्द तो अलग है। इसलिए बोलते हैं कविराज और सभी के एक ट्रांसलेशन में नहीं आ पाता, फिर भी कंट्रोल रखे अंदर ब्रैकेट में लिखना चाहिए, टेक्निकल वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत डिसिप्लिन लिखिए, डिसिप्लिन लिखिए तो वो ठीक है, निकट के सब क्रियावर्ती शब्द है, व्यवहार में शरीर के माध्यम के साथ में है, इसीलिए। लेकिन भगवान साथ साथ में है ना, इसलिए शब्द निकले हैं सब। अगर भगवान नहीं तो कोई नहीं निकलता। तो उपयोग शुद्धात्मा की लाक्षणिकता है, शरीर की नहीं कविराज। तो आप क्या बताएंगे उसके बारे में, आपकी अच्छी भाषा में? है कोई है? शुद्ध उपयोग और समताधारी, बोलो। शुद्ध उपयोग और समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी रे, ज्ञान ध्यान मनोहारी रे, कर्म कलंक को दूर निवारी, फाइल कलंक को दूर निवारी, फाइल कलंक को दूर निवारी, જીવો વરે શિવ નારી રે, જીવ વરે શિવ નારી। એટલે કોઈ એમ માને કે શંકર ભગવાનની પત્નીને પરણવાનું, એવું નથી હોય એનો મિનિંગ। अभी तैयारी कर सकते हैं सरी बहन, एक थोड़ा असीम जय जयकारो 5 मिनट बोला के पीछे तैयारी करो। जयेंद्र भाई लो, तुमने देगा
પછી પછી જો ઉદય પલટાય છે અમારા પણ બધાના. ઉદય કર્મ ક્યારે કોના પલટાઈ જાય કહેવાય ને, હમણાં દેખાશે તમને. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના જયેન્દ્રભાઈ તમે સહી કરો. જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાન હાલો. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર દાદા ભગવાનના આનું નામ ઉદય કર્મ. જય જુઓ જયકાર. ઉપર બેઠેલા હતા પબ્લિકમાં આવી ગયા ને. જય સચિદાનંદ. જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વિચરતા વર્તમાને મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદેહ ક્ષેત્ર તથા અન્ય ક્ષેત્રોમાં વિદ્યમાન તીર્થંકર સાહેબોને તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જય સિમંદર સ્વામી પ્રભુ તીર્થંકર વર્તમાન મહાવિદે ક્ષેત્રે વિચરતા મહાવિદે ક્ષેત્રે વિચરતા ભય કરુણાનો જય સિમંદર સ્વામી પંચ પરમેશી પામે પરમહંસ પદ પામી પરમહંસ પદ પામી જ્ઞાન જ્ઞાન જય સિમંદર સ્વામી આરતી સ્વામીની ગણધર પદ પામે સ્વામી ગણધર પદ પામે નિરાશ્રિત બંધન છૂટે નિરાશ્રિત બંધન છૂટે આશ્રિત જ્ઞાની કરે જય શ્રીમંદર સ્વામી ચોથી આરતી સ્વામીની તીર્થંકર ભાવી સ્વામી તીર્થંકર ભાવી સ્વામી સતરા ચાલે સ્વામી સતરા
एक समय स्वामी खोड़े माधुदारी नमस्ते स्वामी माधुदारी नमस्ते अनन्य शरणु स्वीकारी अनन्य शरणु स्वीकारी मोक्ति पद निवरे जय श्री मंदिर स्वामी एक समय स्वामी खोड़े जे माधुदारी नमस्ते स्वामी माधुदारी नमस्ते अनन्य शरणु स्वीकारी अनन्य शरणु स्वीकारी मोक्ति पद निवरे जय श्री मंदिर स्वामी जय श्री मंदिर स्वामी जय श्री मंदिर स्वामी ओ स्वामी श्री मंदिर हरिभक्ताजी वर्तमाने उपकारी अचर सचर निरासर ओ स्वामी श्री मंदिर हरिभक्ताजी वर्तमाने उपकारी अचर सचर निरासर अचर सचर निरासर वर्तमाने भरत क्षेत्रे प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय निर्णय थी अभेद भावे अनन्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू अनन्य भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું जय दादा भगवान दादा संगमेश्वर भगवान आरती करी जीव तारे आरती करी जीव तारे रौद्र आतया जय दादा भगवान प्रगति गोवा दादा के जग प्रकाशमान करे दादा प्रकाशमान करे जग कल्याणे प्रकट्या जग कल्याणे प्रकट्या अब्रह्म ज्ञानवता जय दादा भगवान पहली आरती दादा की त्रिविधता पकारे दादा त्रिविधता पकारे तव समाधि तव समाधि सुदात्मा जय दादा दादा केवल दर्शन करे ओ शायना ओ शायत ओ शायना ओ शायत प्रिया माता जय दादा भगवान श्री दादा जी केवल ज्ञान पावे दादा केवल ज्ञान पावे संवेदन शक्ति संवेदन शक्ति प्रमाण प्रकाश स्वयं जय दादा भगवान ज्योति आरती दादा जी कभी कथा करे दादा भी कथा करे कल्याण भाव
सचित आनंद निरंजन सित हरिहंसानम हे दाता के मूर्ति चरण स्कंद निष्कामी करुणामय प्रकट दिवो ज्योति जड़वर जगराथारो आरो प्रकट दिवो ज्योति जगराथारो शाश्वत शरणं मोक्ष शबन्धि शाश्वत शरणं शरीर जताए अशरीर भावे शरीर जताए अशरीर भावे निज में सर्वज्ञ तेने वंदन करो निज में सर्वज्ञ तेने वंदन करो दादा भगवान ने नमस्कार करो दादा भगवान ने नमस्कार करो सर्वदेव लोकनो रागी को ज्ञाति पर तीन महात्मा हो करी सके नीरन कोई परमात्मा ने उपसर्ग हरे प्यारे कोई परमात्मा ने परिसर हरे प्यारे दादा की धरे चले हाथो मोकने से नमस्कार हाथो मोक्ष दान साथे अभय दान दासु संसर्ग कमरमा दानाज साधु अमूर्त अमूर्त मोक्षनी तंदुरस्ती साधु अमूर्त अमूर्त मोक्षनी तंदुरस्ती साधु असिद्ध मंदिरनी तंदुरस्ती साधु असिद्ध मंदिरनी तंदुरस्ती साधु जय सच्चिदानंद આવતીકાલનો દાદા ભગવાન હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ દાદા ભગવાન હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ
સર્વે તમને સમર્પણ કરીએ નિકાતે વર્તે મોક્ષ અંતાસે અવનિયા હે હમી સાથે વર્તે મોક્ષ અંતાસે અવનિયા દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન કોઈ રામા કોઈ મોહન કોઈ રામી કોઈ રામા કોઈ રામા કોઈ મોહન કોઈ રામા દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ